वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्. சங்கல்பம் பண்ணிக்கோங்கோ. सर्वेषां भक्तजनानां क्षेमस्थैर्य विजयवीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मनोवाञ्छता फलसिद्ध्यर्थं लोकक्षेमाभिवृद्ध्यर्थं श्री पद्मावती श्रीनिवास कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थं तिरुकल्याण महोत्सवम् आचार्यमुखेन अद्य करिष्ये. सर्वं श्री वेंकटेशार्पणमस्तु. गोविंदा गोविंदा. அகலகில்லே நிறையமென்றலர் மேல் மங்கை உரை மகார்பா நிகரில் புகழாய் உலகம் ஒன்றுடையாய் என்னை ஆழ்வானே நிகரில் அமரர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் அகலகில்லே நிறையமென்றலர் மேல் மங்கை உரை மகர்வா நிகரில் புகழாய் உலகமோ ஒன்றுடையாய் என்னை ஆழ்வானே நிகரில் அமரர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தாகனே புகழாண்டில்லா அடியேனின் அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே. திருச்சானூரிலிருந்து ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் திருக்கல்யாண மகோற்சவம் பாஞ்சரார்த்த ஆகம விதிப்படி இன்றைய திருக்கல்யாண வைபவத்தின் வர்ணனையாளர் காஞ்சி ஆர் நாராயணன். முதலிலே தாயாருடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே விஸ்வக்சேனர் ஆராதனை புண்ணியாக வசனம் இவர்களையெல்லாம் நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். மகாலட்சுமியானவள் நமக்கெல்லாம் கருணை கடாட்சத்தை அளிக்க வல்லவளாக இருப்பவள். ஏனென்றால் மகாலட்சுமிதான் பெருமானுடைய திருமார்பிலே ஒளிகொண்டு விளங்குபவராக இருக்கின்றாள்.
ஆகவே பெருமானுடைய திருமார்பிலே இருந்து ஒளி கொண்டு விளங்குபோலாக இருக்கின்றவள் நமக்கெல்லாம் ஒளியைத் தந்து வாழ்க்கையிலே எல்லா செல்வங்களையும் சகலவிதமான சௌபாக்கியங்களையும் அருள வல்லவளாக இருப்பவள்தான் மகாலட்சுமி. அப்படிப்பட்ட மகாலட்சுமியினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் ஒளிபரப்புகிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. அதிலும் அது நாம் இல்லங்களிலிருந்து இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தை சேவித்தால் நமக்கு சகல சௌபாக்கியமும் அளிக்க வல்ல விராட்டினுடைய பெருங்கருணை கிடைப்பதற்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது. ஆகவே அப்படிப்பட்ட திருக்கல்யாண வைபவத்தை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் இல்லங்களிலிருந்தே நாம் சேவித்து எல்லா செல்வங்களுக்கு உரியவர்களாக பிராட்டி அளிக்க வல்லவளாக இருக்கக்கூடிய இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தை ஒவ்வொரு நிகழ்வாக விஸ்வச்சரர் ஆராதனை முடிந்து புண்ணியாகவசனம் முடிந்து அங்குரார்ப்பணம் இவைகளையெல்லாம் நாம் சேவிக்கின்ற பொழுது பிராட்டியை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிராட்டி நீக்கமர நிறைந்திருப்பவள், இரண்டர கலந்திருப்பவள், எங்கும் நிறைந்திருப்பவள். பெருமாளுடைய திருமார்பிலே சதா காலமும் சதா நேரமும் அவனை விட்டு அகலாமல் அகலகில்லே நிறையுமென்று அலர்மேல் மங்கை உறையுமார்பா என்று சொல்லக்கூடிய அவனுடைய திருமார்பிலிருந்து ஒரு க்ஷணம் கூட பிரியாதவளாக இருக்கின்ற மகாலட்சுமியானவள் நமக்கு செல்வங்களையும் வளங்களையும், ஒரு குழந்தை தவறு செய்தால் எப்படி தாய் ஓடோடி வந்து அரவணைத்து காப்பாளோ அதைப்போலே நாம் நம்முடைய தவற்றினை பெருமானிடத்திலே பிராட்டி எடுத்துச் சொல்லி நம்மையெல்லாம் உயிர்ப்பவளாக வாழ்க்கையிலே செல்வத்தை அளிக்க வல்லவளாக இருப்பவள்தான் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார். அந்த பத்மாவதி தாயாருடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை எல்லாம் நாம் சேவிக்கின்றோம் என்று சொன்னால் மங்களம் பெருகும், வாழ்க்கையில் வளம் வளரும், எல்லா நிலைகளிலும் உயர்த்தி காக்கப்படுபவள். அவள் தாமரை மலர்களிலே அமர்ந்து எப்பொழுதும் பெருமானுக்கு கடாட்சத்தை அருளச் செய்பவள், பெருமானுக்கே கடாட்சம் செய்பவளாக இருப்பவள் என்று சொன்னால் நமக்கென்ன 16 செல்வங்களையும் அளிக்க வல்லவள். ஆகவே அப்படிப்பட்ட மங்கள கமலச்செல்வியானவள் மாலவன் மார்பில் நிற்கும் மங்கள கமலச்செல்வி, மரகத மலரில் மொய்க்கும் மாணிக்கச் சுரும்பு போன்றாய், நீலமா மேகம் தன்னை நிற்கின்ற திருமால் உந்தன் நேயத்தால் மெய்சிலிர்த்து நிகரில்லா செல்வம் கொண்டான். எம்பெருமான் எப்படிப்பட்ட செல்வத்தை கொண்டான் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நிகரில்லாத செல்வத்தை கொண்டான். எப்படி? மாலவன் மார்பிலே இருக்கின்றவள் மகாலட்சுமி. தங்க நிற வண்டுகள் மொய்க்கும் முகுல மலர்களைப் போல் மகாவிஷ்ணுடைய மார்பு மகிழ்ச்சி பெருக்கால். அவனுடைய திருமார்பினுடைய அழகை சொல்லுகின்ற பொழுது மகாலட்சுமியும் அங்கே வாசம் பொருந்தியவளாக, அவருடைய மார்பிலே திருமார்பிலே வசிக்கின்றவளாக இருக்கின்றவள். எல்லையற்ற ஆனந்தத்தை அளிப்பவள். மங்கள நாயகியினுடைய கடைக்கண் பார்வை என் மீது பட வேண்டும், எனக்கு சகல சௌபாக்கியங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். அப்படி வேண்டுகின்ற பொழுது மகாலட்சுமியானவள் தன் குழந்தைகளுக்கு செல்வத்தை வாரி வழங்க வல்லவளாக இருக்கின்றாள். ஆக அப்படிப்பட்ட மகாலட்சுமியினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே விஸ்வக்சேனர் என்று சொல்லக்கூடிய முதல் நிலை அவருக்கு ஆராதனை செய்து
பிறகு புண்ணியாக வசனம் சுத்தி செய்து அங்கே திருமாங்கல்ய வைபவங்களையெல்லாம் நாம் சேவிக்க இருக்கின்றோம். அப்படி சேவிக்கின்ற பொழுதுதான் பிராட்டினுடைய பெருமை மாலவனுடைய மார்பிலே என்றும் நீங்காதவள் என்று நாம் இதிலிருந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். நீங்காதவளாக இருந்தாலும் கூட நாம் செய்கின்ற பாவத்திற்கெல்லாம் விமோச்சனமாக தாயார் பிராட்டியானவள் பெருமானிடத்திலே நம் குழந்தைகள் செய்துவிட்ட தவற்றினை பெரிதும் எடுத்து கொள்ளாதீர் என்று சொல்லி பிராட்டி நமக்கெல்லாம் செல்வப்பேற்றினை வழங்குபவள். அப்படி செல்வப்பேற்றினை வழங்கக்கூடிய பிராட்டி பெருமானிடத்திலே இன்று திருக்கல்யாண வைபவத்தை இங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நிலையிலே பார்க்கின்ற பொழுது राजापत्यो वा अश्वः प्रजापतेराब्धे पादसवक्षौहे ब्रह्मणे आयुरेवावरुन्धे उदामयेत्रावरुणाय राष्ट्रमेव वश्यकः ब्रह्मं ब्राह्मणात्सकंसिने राष्ट्रमेवेन्द्रियाव्यकः वासुदीनेष्टापोतृभ्यां पवित्रे एवास्त्रीते सूर्यवाचितमच्छावागाय तत एव वरुणमवयजते अनद्वाहमग्नीधे वह्निर्वानड्वान् वह्निरग्नीद् वह्निनैव वह्नियज्ञस्यावरुन्धे इन्द्रस्य दुर्वाणस्य त्रेधेन्द्रियं वीर्यं परापतत् इन्द्रस्य दुर्वाणस्य त्रेधेन्द्रियं वीर्यं परापतत् अनड्वाहमग्नीधे वह्निर्वानड्वान् वह्निरग्नीद् वह्निनैव वह्नियज्ञस्यावरुन्धे इन्द्रस्य दुर्वाणस्य त्रेधेन्द्रियं वीर्यं परापतत् भृगुस्तृतीयमभवत् श्रायन्तीयं तृतीयं सरस्वती तृतीयं भार्गवो होता भवति श्रायन्तीयं ब्रह्मसामं भवति पारवन्तीयमग्निष्टोमसामं सारस्वतीरपो गृह्णाति इन्द्रियस्य वीर्यस्यावरुद्धै श्रायन्तीयं ब्रह्मसामं भवति इन्द्रियमेवास्मिन् वीर्यग्श्रयति पारवन्तीयमग्निष्टोमसामम् इन्द्रियमेवास्मिन् वीर्यं वारयति ईश्वरो वा एष दिशो नोन्मदितोः यन्दिशो नु स्थापयन्ति दिशामवेष्टयो भवन्ति दिक्ष्वेव प्रतिष्ठत्यनम् आदाय पञ्चदेवताय यजति पञ्चदिशः दिक्ष्वेव प्रतिष्ठति अविशो अविश्वावारहत्यमधिकारयति यजमानदेवत्यो वै बृहस्पतिः यजमानमेव तेजसा समुद्धयति आदित्यां मधुहां गर्भिणीमालभते मारुतिं वृष्टिं वक्षौहिं विसञ्चैवास्मै राष्ट्रं च समीची दधाति आदित्यया पूर्वया प्रचरति आरुत्योत्तरया राष्ट्र एव विषमनुबध्नाति उच्चैरादित्याय आश्रावयति उपागन्तमारुत्यै तस्मात् राष्ट्रं विषमति वदति गर्भिण्यादित्या भवति इन्द्रियं वै गर्भः राष्ट्रमेवेन्द्रियाव्यकः अगर्भा मारुति पित्वै मरुतः विषमेव निरिन्द्रियामकः देवासुराः संयत्ता आसन् ते देवा अश्विनो पूषं वाचसत्यकं सन्निधाय अनृतेनासुरानभ्यभवन् ते स्तिभ्यां गोष्णे पुरोडा संवादसकपालं निरवपन् ततो वै ते वाचसत्यमुवारुन्धता यदस्तिभ्यां गोष्णे पुरोडासं वादसकपालं निर्वपति अनृतेनैव भ्रातृव्यानविभूय वाचसत्यमवरुन्धे सरस्वते सत्यवाचे शरं पूर्वमेवोदितं तरेणाभिगृह्णाति सवित्रे सत्यप्रसवाय पुरोडा संवादसकपालं प्रसूति दूतां प्रहिणोति आविद एता भवन्ति आविदमेवैनं गमयन्ति अथो दूतेभ्य एव न छिद्यते सुधन्वकं दक्षिणासमध्ये आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपति तस्मात् शिशिरे कुर्वञ्चालाप्रान्तो यान्ति सौम्यं चरं तस्मात् वसन्तं व्यवसायादयन्ति सावित्रं द्वादशकपालं तस्मात् पुरस्ताद्यवानागं सवित्रा विरुन्धते
बृहस्पत्यञ्जरं सवित्रैव विरुध्य ब्रह्मणाय वाना दधते वाष्ट्रमष्टाकपालं रूपाण्येव तेन कुर्वते वैश्वानरन्वादसकपालं तस्माज्जघन्येनैदाघे प्रत्यञ्जः कुर्वञ्जालायान्ति सारस्वतं निर्वपति तस्मात् प्रावृषि सर्वा वाचो वदन्ति पौष्णेन व्यवस्यन्ति मैत्रेण कृषन्ते वारुणेन विधृता आसते चैत्रवत्येन वाचयन्ते आदित्येनादधते मासिमास्येतानि हवीगंसि निरूप्यानीत्याहुः तेनैवर्तोन् प्रयुङ्क्त इति अथो खल्वाहुः कस्संवत्सरं जीविष्यतीति षडेव पूर्वेद्यर्निरूप्यानि षडोत्तरेभ्यः तेनैवर्तोन् प्रयुङ्क्ते दक्षिणोरथवाहनवाह पूर्वेषां दक्षिणोत्तरेषां संवत्सरस्यैवान्तौ युनक्ति सुवर्गस्य लोकस्य समष्टै इन्द्रस्य सुषुबाणस्य दशधेन्द्रियं वीर्यं परापतत् स यत्प्रथमं निरष्टीवत् तत्फलमभवत् यद्द्वितीयं तत्पदरं यत्तृतीयं तत्कर्कन्दु यन्नस्तः स श्रीगुंहः दक्ष्योः सार्दूलः यत्कर्णयोः सवृकः यवूर्ध्वः स सोमः यावाजी सासुरा तयासक्तवो भवन्ति इन्द्रियस्यावरुद्धि तयानि लोमानि कृषिमेवावरुन्धे प्रयोग्रहाः वीर्यमेवावरुन्धे नाम्नादशमी नव वै पुरुषे प्राणाः नाभिर्दशमी प्राणा इन्द्रियं वीर्यं प्राणानेवेन्द्रियं वीर्यं यजमानात्मभक्ते शीशेन क्लीबाक्षष्पाणि क्रीणाति न वा एतदयो न हिरण्यं यत्शीशं न स्त्रीनपुमाने यत्क्लीबः न सोमो न सुराः यत्सौत्रामणिसमृद्धे स्वाद्वीन्द्वा स्वादुनेत्याः सोमे वीणां करोति सोमोऽस्तिभ्यां वच्चस्व सरस्वत्यै वच्चस्वेन्द्राय सुत्राम्ने वच्चस्वेत्याः एका देवताभ्यः पच्यते चित्रस्तकं दृष्टा वसति चित्रो हि रात्रि क्रीतस्तोमो वसति पुनातु ते परिश्रुतमिति युजुषा पुनादीयावृत्यै पवित्रेण पुनाति पवित्रेण हि सोमं पुनन्ति वारेण शश्वदातनेत्याह वारेण हि सोमं पुनन्ति वायोपोतः पवित्रेणेति नैतया पुनीयात् श्रद्धा ह्येषा अतिपवितस्यैतया पुनीयात् सुविधङ्गेत्य निरुक्तया प्राजापत्यया गृह्णाति अनिरुक्त प्रजापतिः प्रजापतेराप्ते एकयत्ता गृह्णाति एकदैव यजमाने वीर्यं दधाति आश्विनं धूम्रमालभते अस्मिन् वै देवानां भिषजो ताभ्यामेवास्मै भेषजं करोति सारस्वतं मेषं वाग्वै सरस्वती वाचैवैनं भिषज्यति ऐन्द्रमृषभकं सेन्द्रत्वाय यत्ऋषयोपेष्वालभेत बहिर्धास्मा इन्द्रियं वीर्यं दध्यात् भ्रातृव्यमस्मै जनयेत् एकयोपालभते एकदैवास्मिन्द्रियं वीर्यं दधाति नास्मै भ्रातृव्यं जनयति नैतेषां वसूनां पुरोडासा भवन्ति रः पुरोडासा केते भागं सुराममस्मिनेति सर्वदेवत्ते यात्यानुवाक्ये भवतः सर्वा एव देवताः प्रीणाति ब्राह्मणं परिक्रीणीयामुच्छेदनस्य भातारं ब्राह्मणोऽहुत्याम् उच्छेदनस्य भाता यदि ब्राह्मणं न विन्देत् तन्वीरवपायामवनयेत् सैव तदप्रायच्छिद्धिः यद्वै सौत्रामन्ये विरुद्धं तदस्यै समृद्धं नानादेवत्याः पशवश्च पुरोडासाश्च भवन्ति समृद्ध्यै ऐन्द्रपशूनामुत्तमो भवति ऐन्द्रपुरोडासानां प्रथमः इन्द्रिये एवास्मै समीति दधाति पुरस्तादनुयाजानां पुरोडासैश्चरति अथवा वै पुरोडासाः पशूनेवावरुन्धे ऐन्द्रमेकादशकपालं निर्वपति इन्द्रियमेवावरुन्धे सावित्रं द्वादशकपालं प्रसूति वारुणं दशकपालं
विदधते मडवा दक्षिणाम् उत वा एषास्वकं सूते उतास्वतरम् उत सोम उत सुराः तत्सौत्रामणि समृद्धे पारस्वत्यं वसन्त तत्समदिव वितश्चालभते ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिः ब्रह्मणैव यज्ञस्य व्यर्थमपि भवति पुरोडासवानेष वसद्भवति अख्येतस्य ग्रहं गृह्णन्ति सोमप्रतीका पितरस्तृप्नुतेति सदा तृण्णायागं समवनयति आयुष्पुरुषप्रतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति दक्षिणेऽग्नौ जुहोति पापवत्सस्य व्यावृत्ति हिरण्यमन्तराधारयति शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति यत्रैव सदा तृणान् धारयति तन्निदधाति प्रतिष्ठित्यै दृणु वा एतस्येन्द्रियं वीर्यं गच्छति जगं सोमोऽतिपवते तृणान्याद्यानुवाक्याभिरुपतिष्ठते यदेवास्य पितॄनिन्द्रियं वीर्यं गच्छति तदेवावरुन्धे तिसृभिरुपतिष्ठते एवा इतो लोके पितरः तानेव प्रीणाति अथो त्रीणि वै यज्ञस्येन्द्रियाणि अध्वर्युर्होता ब्रह्मा उपतिष्ठन्ते तान्येव यज्ञस्येन्द्रियाणि तैरेवास्मै भेषजं करोति अग्निष्टोममग्राहरति यज्ञमुखं वा अग्निष्टोमः यज्ञमुखमेवारभ्य सममाक्रमते अधैषोऽभिषेचनीयस्ततस्त्रिगुं सपवमानो भवति क्षयत्रिगुं सद्वै देवताः सा एवाप्नोति प्रजापतिस्ततस्त्रिगुं सः तमेवाप्नोति सगंसर एष स्तोमा नाम यथा पूर्वं यद्विषमास्तोमाः एतावान् वै यज्ञः यावान् पवमानाः यत्समापवमानाः तेनासंसरः तेन यथा पूर्वम् आत्मनैवाग्निष्टोमेन घ्नोति आत्मना पुण्यो भवति प्रजा वा उक्थानि पशव उक्थानि यदुक्ष्यो भवत्यनुसन्तत्यै उपत्वा जामयोगिरैति प्रतिपद्भवति वाक् वै वायुः वाच एवैषोऽभिषेकः सर्वासामेव प्रजानागुं सूयते सर्वायेनं प्रजाराजेति वदन्ति एतमुच्यन्दसाक्षिप इत्याह आदित्या वै प्रजाः प्रजानामेवैतेन सूयते यन्ति वा एते यज्ञमुखात् ये संघात्या अक्रम्णे यदा हतोऽप्रवादो अग्नियन्ति तेनैवैक्यमुखान् नयन्ति अनष्टप्रथमा भवति अनष्टगुत्तमा वाग्वा अनष्टगुत्तमादेव प्रयन्ति पातोद्यन्ति उद्वतेर्भवन्ति उद्वद्वा अनुष्टुभारूपम् आनुष्टुभराजन्यः अस्मादुद्वतेर्भवन्ति शौर्यनुष्टुगुत्तमा भवति स्वर्गस्य लोकस्य सन्तत्यै यो वै सवादेति नैनकं सवोपनमति यस्सामभ्ययेति पापीयान् सुशुभानो भवति एतानि खलु वै सामानि यत्पृष्ठानि भवन्ति तैरेव सवान्नैते यानि देवराजानागुं सामानि तैरमुष्मिन् लोकरुध्नोति यानि मनुष्यराजानागुं सामानि तैरस्मिन् लोकरुध्नोति उभयोरेव लोकयोरुध्नोति देवलोके च मनुष्यलोके च एकविगुंसोऽभिषेचनीयस्योत्तमो भवति एकविगुंसकेशवपनीयस्य प्रथमः सप्तदशोदशपेयः विद्वा एकविगुंसः राष्ट्रगुं सप्तदशः इस एवैतन्मध्यतोऽभिषिच्यते तस्माद्वा एष विशां प्रियः विशो हि मध्यतोऽभिषिच्यते चित्वा येन मदोऽभिषानुया स्थापयन्ति तत्सुवर्गं लोकमभ्यारोहति यदिमं लोकं न प्रत्यवरोहेत् अधिजनं वेयात् उद्वामा चेत् यदेष प्रतीचेन स्तोमो भवति इममेव तेन लोकं प्रत्यवरोहति
अथो अस्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठत्यनुन्मादाय பிராட்டியினுடைய திருக்கல்யாண வைபவம் அங்கே நடைபெற்று கொண்டிருப்பதை நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ரக்ஷா பூஜை, ரக்ஷாபந்தனம் இவைகளெல்லாம் நாம் சேவித்தோம். திருமால் வைகுந்தத்திலே இருந்து தன்னை பிரிந்து சென்ற திருமகளை பூ உலகிலே தேடி வருகின்றார். அப்படி வருகின்ற பொழுது ஸ்வர்ணமுகி நதிக்கரையிலே, அதுதான் இன்றைய சொல்லக்கூடிய திருச்சானூர், திருச்சுகனூர், அங்கே தன்னுடைய பஞ்ச ஆயுதங்களான சங்கு, சக்கரம், கதை, கோதண்டம் இவைகளையெல்லாம் கொண்டு எம்பெருமான் ஒரு குளத்தை ஏற்படுத்தினார். அதன் கரையிலே அமர்ந்து மகாலட்சுமியை தோத்திரம் செய்கிறார். யார் செய்வது? எம்பெருமான் திருமால். அப்படி மகாலட்சுமியை தோத்திரம் செய்ய போது கார்த்திகை மாதம் வளர்பிறையிலே பஞ்சமி திதியில் உத்திராட நட்சத்திரத்திலே வெள்ளிக்கிழமையில் 1000 இதழ் கொண்ட தாமரையிலே தாயார் தோன்றியவள். இப்பொழுது அழகான பெருமானுடைய பிராட்டியாக இருக்கக்கூடிய பத்மாவதி தாயார் உத்திராட நட்சத்திரத்திலே வெள்ளிக்கிழமையிலே 1000 இதழ் கொண்ட தாமரையில் தாயார் தோன்றினாள். தோன்றியவுடன் ஆனந்த கண்ணீரால் பரவசத்தினுடைய திருமாலுடைய பாதங்களை கழுவினாள். பத்மம் என்னும் தாமரையிலே தோன்றியதால் அவள் பத்மாவதி என்று அழைக்கப்பட்டாள். அதாவது தாமரை புஷ்பத்தினுடைய பத்மம் என்று சொல்லக்கூடிய தாமரை, அந்த தாமரையிலே அவள் தோன்றியதால் அவள் பத்மாவதி என்று ஆகினாள். அந்த குளத்திற்கே கூட பத்ம சரோவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. திருச்சானூர் என்று சொல்லக்கூடிய திருச்சானூரிலே தாயார் பிராட்டினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை நாமெல்லாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால், நமக்கெல்லாம் சகல சௌபாக்கியங்களை அளிக்க வல்லவளாக இருக்கக்கூடிய பிராட்டி. ஏன் என்று சொன்னால், பெருமானுக்கே திருமார்பிலே இருந்து ஒளியையும் லக்ஷ்மி கடாட்சத்தையும் அளிக்க வல்லவளாக இருக்கக்கூடியவள், என்றும் அகலாதவளாக இருக்கக்கூடியவள், அகலகில்லே நிறையமென்று அலர்மேல் உரைமார்பா என்று சொல்லக்கூடிய பிராட்டியானவள் இந்த உலகத்திலே ஒரு குழந்தை அழுகிறது என்று சொன்னால் ஓடோடி வந்து अप्रतिष्ठितो वा एष इत्याहुः यो राजसूयेन यजत इति यदा वा एष एतेन द्विरात्रेण यजते अथ प्रतिष्ठाम् अथ संवत्सरमाप्नोति यावन्ति संवत्सरस्याहोरात्राणि तावतीरेतस्य स्तोत्रीयाः अहोरात्रेष्वेव प्रतिष्ठति अग्निष्टोमः पूर्वमहद्भवति अतिरात्रौ उत्तरम् नानैवाहोरात्रयो प्रतिष्ठति पौर्णमास्यां पूर्वमहद्भवति यष्टकायामुत्तरं नानैवार्धमासयो प्रतिष्ठति अमावास्यायां पूर्वमहद्भवति उद्दृष्ट उत्तरं नानैव मासयो प्रतिष्ठति असो खलु ये एव समानपक्षे पुण्याहे स्यातां तयोः कार्यं प्रतिष्ठिते अपशव्यो द्विरात्र इत्याहुः द्वेह्येते छन्दसि गायत्रं च त्रैष्टुभं च जगति मन्तर्यन्ति न तेन जगति कृतेत्याहुः यतेनान्ततीयसवने कुर्वन्तीति यदा वा एषा हीनस्याहद्भजते साह्नस्य वासवनम् अथैव जगति कृता अथ पशव्यः युष्टिर्वा एष द्विरात्रः एवं विद्वान् विरात्रेण यजते एवास्मा उच्छति अथो तम एवावहते अग्निष्टोममं तत आहरति
अग्निः सर्वा देवताः देवता स्वेव प्रतितिष्ठति अंगिरसो वै सत्रमासदा तेषां वृष्ण्यद्घर्मधुगासीत् सर्जेशेनाजीवत् ते ब्रुवन् कस्मै नु सत्रमास्महे स्यावोषधीर्न जनयाम इति ते दिवो वृष्टिमसृजन्तां यावन्तस्तोका अवापद्यन्तां तावतीरोषधयो जायन्तां ता जाताः पितरो विषेणालिम्पन् तासाञ्जघ्वारुप्यन्तैत् ते ब्रुवन् कैदमित्समकरिति वयं भागधेयमिच्छमाना इति पितरो ब्रुवन् किं वो भागधेयमिति अग्निहोत्र एव नोऽप्यस्त्वित्यब्रुवन् तेभ्य एतद्भागधेयं प्रायच्छन् यद्भुक्त्वा निमाष्टि ततो वेदोषधीरस्वदयन् एवं वेद स्वदन्ते स्मा ओषधयः ते वत्समुपावासृजन् इदन्नाहव्यं प्रदापयेति सोऽब्रवीद्वरं वृणै दशमारात्रिर्जातन्नदोहन् आसङ्गवं मात्रा सहचरानीति तस्माद्वत्सञ्जातं दशरात्रिर्न दुहन्ति आसङ्गवं मात्रा सहचरति वारे वृतगह्यस्य तस्माद्वत्सकं सकं सृष्टधयकं रुद्रो घातुकः अतिः सन्धान्धयति प्रजापतिरग्निमसृजता तं प्रजा अन्वसर्ज्यन्ता तमभाग उपास्ता सोऽस्य प्रजाभिरपाक्रामत् तमवरुरुत्समानोऽन्वयेत् तमवरुधन्नाशक्नोत् स तपोदप्यता सोऽग्निरुपारमता तापि वैश्य प्रजापतिरिति स रराटादुदमृष्टा तद्घृतमभवत् तस्माद्यस्य दक्षिणतः केशा उन्नष्टाः ताञ्ज्येष्ठलक्ष्मी प्राजापत्येत्याहो यद्रराटादुदमृष्टा तस्मात् रराटे केशा न सन्ति तदग्नौ प्रागृह्णात् तद्व्यचिकित्सत् लोहवानी माहौषा इति तद्विचिकित्सायै जन्म एवं विद्वान् विचिकित्सति वसीय एव चेतयते तं वागभ्यवदज्जुहुदेति सोऽब्रवीत् कस्त्वमसीति स्वैव ते वागित्यब्रवीत् सोऽजुहोत्स्वाहेति तत्स्वाहाकालस्य जन्म एवग्स्वाहाकालस्य जन्म वेद करोति स्वाहाकारेण वीर्यं यस्यैवं विदुषस्वाहाकारेण जुह्वति भोगायैवास्य हुतं भवति तस्य आहुति पुरुषमसृजतां द्वितीयमजुहोत् सोऽश्वमसृजता तृतीयमजुहोत् सगामसृजत चतुर्थमजुहोत् सोऽविमसृजत पञ्चममजुहोत् सोऽजामसृजत सोऽग्निरबिभेत् आहुतिभिर्वैमा आप्नोतीति स प्रजापतिं पुनः प्राविशत् तं प्रजापतिरब्रवीत् जायस्वेति सोऽब्रवीत् किं भागधेयमभिजनिष्यैति तुभ्यमेवेदकं हूयात इत्यब्रवीत् स एतद्भागधेयमभ्यजायत यदग्निहोत्रं तस्मादग्निहोत्रमुच्यते तद्धूयमानमादित्योऽब्रवीत् माहुषीः उभयोर्वैनावेतदिति सोऽग्निरब्रवीत् कथन्नो होष्यन्तीति सायमेव तुभ्यं जुहवन् प्रातर्मह्यमित्यब्रवीत् तस्मादग्नये सायकं हूयते सूर्याय प्रातः आग्नेयी वै रात्रिः ऐन्द्रमः यदनुदिते सूर्ये प्रातर्जुहुयात् उभयमेवाग्नेयज्ञः स्यात् उदिते सूर्ये प्रातर्जुहोति तथाग्नये सायकं हूयते सूर्याय प्रातः रात्रिं वा अनुप्रजा प्रजायन्ते अह्नात् प्रतितिष्ठन्ति यत्सायं जुहोति प्रैवतेन जायते उदिते सूर्ये प्रातर्जुहोति प्रत्येव तेन तिष्ठति प्रजापतिरकामयत प्रजायेति स एतदग्निहोत्रं मिथुनमपश्यत् तदुदिते सूर्ये जुहोत् यजोषान्यत् तूष्णीमन्यत् ततो वै स प्राजायत
यस्यैवं विदुष उदिते सूर्येऽग्निहोत्रं जुह्वति प्रैव जायते अथो यथा दिवा प्रजानन्नेति तादृगेव तत् अथो खल्वाहुः यस्य वै द्वौ पुण्यौ गृहे वसतः यस्तयोरन्यकं राधयत्यन्यन्न उभौ वा वसता पृच्छतीति अग्निं वादित्यः सायं प्रविशति तस्मादग्निर्दूरान्नक्तं ददर्शे उभे हि तेजसी सम्पद्येते पूज्यन्तं वादित्यमग्निरनुसमारोहति तस्माद्धूम एवाग्नेर्दिवा ददृशे यदग्नये सायं जुहुजात् आसूर्याय वृश्चेत यत्सूर्याय प्रातर्जुहुजात् आग्नये वृश्चेत देवताभ्यः समदं दध्यात् अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यस्वाहेत्येव सायकं होतव्यं सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिरग्निस्वाहेति प्रातः ततो भाभ्यागं सायकं हूयते भाभ्यां प्रातः देवताभ्यः समदं दधाति अग्निर्ज्योतिरित्याह अग्निर्वैरे दोधाः प्रजाज्योतिरित्याह प्रजा एवास्मै प्रजनयति सूर्यो ज्योतिरित्याह प्रजास्वेव प्रजाता सुरेतो दधाति ज्योतिरग्निस्वाहेत्याह प्रजा एव प्रजाता अस्यां प्रतिष्ठापयति तूष्णीमुत्तरामाहुतिं जुहोति सुनत्वाय प्रजाते यदुदिते सूर्ये प्रातर्जुहुजात् இப்பொழுது அக்னி பிரதிஷ்டை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணம் பிராட்டிக்கு மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற இருக்கின்றது. மகாலட்சுமியானவள் பத்மாவதி தாயார் எல்லா உலகங்களுக்கும் தாயாக விளங்குபவள். மதுகை கைடவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இரு அரக்கர்களை அழித்து தர்மத்தை காத்தவள். மகாவிஷ்ணுனுடைய வலது மார்பினில் விளையாடுபவள். அற்புதமான வடிவானவள். அனைவர் உள்ளத்தையும் கவர்ந்து அருள் புரியும் கருணையுடையவள். திவ்ய வடிவம் பூண்டவள். தம்மை சரணடையும் பக்தர்களுக்கு வேண்டியவற்றை அளிப்பதில் இயல்பானவள். அவர் திருச்சானூரிலே இருந்து நமக்கெல்லாம் அருளை வாரி வாரி வழங்கக்கூடியவளாக இருக்கின்றாள். மகாலட்சுமி என்று சொன்னாலே மங்களமும் பொருள் செல்வங்களையும் அளிப்பவள். அப்படிப்பட்ட மகாலட்சுமிக்கு திருக்கல்யாண வைபவம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே பெருமானுக்கும் பிராட்டிக்கும் இப்பொழுது திருக்கல்யாண வைபவம் மாங்கல்யதாரணம் நடைபெற இருக்கிறது. அதையெல்லாம் சேவிக்கின்றவர்களுக்கு தினந்தோறும் திருக்கல்யாண வைபவம் என்று சொன்னாலே திருமலையிலே பெருமானுக்கும் திருச்சுகனூரிலே பிராட்டிக்கும் நடைபெறக்கூடிய இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தை தேவர்களெல்லாம் வந்து அவர்களை அழைத்து ஆகூதி செய்யப்பட்ட நிலையிலே இப்பொழுது மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெறுகிறது. பிராட்டியானவள் மாலவன் மீது வைத்த மாய பொன்விழி இரண்டையும் மாதுனி என்னிடத்தில் வைத்தனை என்றாலும் நானும் காலமா கடலில் உந்தன் கருணையால் செல்வம் பெற்று கண்ணிறை வாழ்வு கொள்ளேன் கண் வைப்பாய் கமலத்தாயே. இந்த கருணை என்னும் செல்வத்தை அளிக்க வல்ல மகாலட்சுமியே, மாலவன் மீது வைத்த மாய பொன்விடை இரண்டையும் ஸ்ரீ காந்தாய கல்யாணதே நிதேத்னாம் ஸ்ரீவேங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம்.
ನಿರ್ಮಲ ಗೋವಿಂದ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ.
पशूनेवावरुन्धे सर्वान् पूर्णान्नयति सर्वे हि पुण्याराधाः अनोचोन्नयति प्रजाया अनोचे नत्वाया अनोच्चेवास्य प्रजार्धुका भवति समृशति व्यावृत्यै नाहोष्यन्नुपसादयेत् यदहोष्यन्नुपसादयेत् यथान्यस्मा उपनिधाय अन्यस्मै प्रयच्छति तादृगेव तद् आस्मै वृश्चेत यदेव गार्हपत्येधिश्रयति तेन गार्हपत्यं प्रीणाति अग्निरबिभेद् आहुतयो मात्येष्यन्तीति स एतागुं समिधमपश्यत् तामाधत्तां ततो वा अग्नावाहुतयो ध्रियन्तां यदेनगं समयच्छत् तत्समिधः समित्वं समिधमादधाति समेवैनं यच्छति आहुतीनां धृत्यै अथो अग्निहोत्रमेवेध्वमत्करोति आहुतीनां प्रतिष्ठित्यै ब्रह्मवादिनो वदन्ति यदेकागं समिधमाधायद्वे आहुति जुहोति अथ कस्यागं समिधि द्वितीयामाहुतिं जुहोतीति यद्वे समिधा वा दध्यात् भ्रातृव्यमस्मै जनयेत् एकागं समिधमाधाय यजुषान्यामाहुतिं जुहोति उभे एव समिद्वती आहुति जुहोति नास्मै भ्रातृव्यं जनयति आदीप्तायां जुहोति समिद्धमिव हि ब्रह्मवर्चसम् अथो यथातिथिं ज्योतिष्कृत्वा परिवेवेष्टि तादृगेव तत् चतुरुन्नयति द्विर्जुहोति तस्माद्विपाच्चतुष्पादमत्ति अथो द्विपद्येव चतुष्पदः प्रतिष्ठापयति पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रददति नारायणाय वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेवाय विद्महे विष्णुभद्राय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।